Hello and welcome. In 2023 Civil Service Examinations, there is a question in paper 2 that many students have requested to discuss, psychology optional, and question is here. Let me read. Discuss the importance and application of ecological theory for program implementation of saving the girl child. Question number 4A of paper 2, 15 marks. See, I am repeating the question that discuss the importance. First part is its importance, and second is application of ecological theory. Now question that you select the ecological theory and then highlight its importance and application, how it will be applied. So briefly you should focus on this thing. And program, what is the name of the program? Any program you can select that is for saving the girl child. Suppose you have selected Beti Bachao, Beti Padhao. The scheme is okay. Any scheme you can select. Sukanya Samriddhi, Balika Samriddhi Yojana, like that. Any program you can select. But question is that, what is ecological theory? See, ecological theory is not a name of a single theory. Many students say that Bronfenbrenner, I know this thing, is a psychologist who has given the idea that we live in an environment that is multi-layered. Multi-layered in the sense that there are different sort of environment and we live in that. So there are some immediate environment, some remote environment. So how it all environments, whether it is immediate or remote, it affects human. So you got idea. So it will include everything. But if you take Yuri Bronfenbrenner model, then you will have convenience, because within that framework you will be able to discuss all the factors. For example, attitude is a part of ecological model or not? Attitude formation. Ecology is all about the system that affects some individual. For example, in old Rajendra Nagar there is a system, there is ecology, that you are preparing for IAS examination. So you have coaching here, you are books seller here, you have tea stall here, food corners, many things you have friends here, you have many things. So you get this thing, but this is your immediate ecology and all. But your ecology will also include your parents, family, relatives, and what they are thinking about your preparation. All this thing will come under this one, and how your preparation is going on will be affected, something like that. So if you pick up Beti Bachao Beti Padhao Yojana given by Prime Minister, then what we will say that first is the girl child. And if you look at the system given by Bronfenbrenner, at how these things are there, then first you will discuss that girl child is okay. In a village there is girl child. Okay, what would happen? Then immediately it is called microsystem. The girl's child itself, its own environment, all these things. So what family and all, but more appropriately that these microsystem, suppose your parents are there and all your siblings are there, these things, this microsystem interact, and that become part of the mesosystem. तो mesosystem interacting microsystem कहते हैं ना. Micro ये आप यहाँ पे है, this then mesosystem, then family, school, all these things come under this one. Then go forward, that then comes exosystem, something that is indirect. Indirectly, suppose your neighborhood, well, yes, your neighborhood services available, well, yes, that is also, जैसे हमने example दिया कि for IAS examination your environment is also a part of your immediate environment, जिसमें neighborhood वगैरह जो आते हैं. Then what about गवर्नमेंट पॉलिसी इंसेंटिवाइजेशन, जैसे कन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना जो कहते हैं, सपोज monetary incentivization is also given.
So that will be what? That will be at the level of you can say macro system, culture, beliefs, है ना. बिना कल्चर के बदलाव के, जैसे लड़कियां एक बोझ है, पराया धन है, दिस इज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर. These are the part of the cultural beliefs. So cultural beliefs, customs, practices should be some way you should target this one, how to modify this thing, how to bring rationality in society. So that center will come under what? Macro system. So government policies, program सब उसी के अंदर आ जाता है. And then finally chrono system. Chrono system is that it's a girl child is there, and then there is something happens in family, the death of the father, है ना, जैसे किसी के फैमिली मदर, तो वो गर्ल्स चाइल्ड को ज़्यादा अफेक्ट करती है. सो दिस इज द थिंग्स यू विल राइट. डाइवोर्स हो गया तो दैट विल अफेक्ट गर्ल्स चाइल्ड मोर. सो गर्ल्स के बेटी बचाओ ये एप्लीकेशन. तो इस प्रोग्राम का क्या इंपॉर्टेंस है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल थ्योरी पहले बताना है आपको, इंपॉर्टेंस एंड देन एप्लीकेशन. सो यू काउंट द इम्पॉर्टेंस. इम्पॉर्टेंस का मतलब यहाँ पे ये होगा कि इफ़ वी टेक फ्रैगमेंटेड अप्रोच, जैसे कि हमने गर्ल्स को न्यूट्रिशन के लिए व्यवस्था कर दिया. गर्ल्स के लिए हमने बोला कि आप स्कूल जाएंगे तो यू विल गेट दिस मनी, ओके. बट स्कूल विल कम अंडर मेसो सिस्टम. लेकिन स्कूल जाने के लिए हमें पुश चाहिए. तो हम जब तक माइक्रो और मेसो और एक्सो और मैक्रो को साथ में एड्रेस नहीं करते, है ना, इंसेंटिवाइज कर रहे हैं. जैसे घर से पुश होगा तो स्कूल से पुल भी काम करेगा. तो वो पढ़ने की दिशा में बता रहा हूँ. बेटी बचाओ मैंने सेविंग के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पर केवल फोकस रखते हैं. तो अगर आप ये देखते हैं कि गर्ल्स चाइल्ड होने, अगर आप गर्ल्स चाइल्ड है तो आपको एजुकेशन फ्री कर दिया आपने, या ये कर दिया, या अवेयरनेस क्रिएट किया. तो एजुकेशन फ्री होना एक मैक्रो सिस्टम गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात है. लेकिन आपने जो अवेयरनेस क्रिएट किया उसके बारे में, और जो दैट विल पर्कुलेट अप टू लेवल द पेरेंट्स एंड फैमिली, जो माइक्रो का पार्ट बन जाएगा, माइक्रो मेसो का पार्ट बनेगा, है ना. तो माइक्रो है, मेसो है, एक्सो है, मैक्रो है, क्रोनो है, ये है ना लेवल. ऑल दीज थिंग्स आर इंटरैक्टिंग सिस्टम, ये आप जान सकते हो. तो आपको ये बताना कि इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इफ़ वी टेक फ्रैगमेंटेड अप्रोच, सपोज हमने माइक्रो सिस्टम में बदलाव किया, मेसो सिस्टम में, और हमने क्रोनो को, मैक्रो को छोड़ दिया. माइक्रो लेवल पे तो हमने पॉलिसी बताया, मैक्रो को छोड़ दिया. और कभी मैक्रो के लेवल पे बनाया, जैसे हम उसको उसी को तो कहते थे टॉप डाउन, मैक्रो बॉटम अप. तो अगर हमने टॉप डाउन पॉलिसी बनाया तो दोनों मिला ही नहीं. दोनों का एक, आप चीज़ें एक तरीके से ऊपर से लाकर चीज़ों को बदल नहीं सकते, क्योंकि माइंडसेट नहीं बदलता तो रियलिटी नहीं बदलती. और माइंडसेट बदलता है लेकिन सिस्टम ही नहीं है उसका. हम पढ़ाना चाहते हैं लेकिन स्कूल नहीं, तो क्या होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. सो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो इकोलॉजिकल, इसका इम्पोर्टेंस है. और एप्लीकेशन को लिखते समय आपको ये जानना चाहिए कि जैसे ये माइक्रो है, मेसो है, एक्सो है, मैक्रो है एंड क्रोनो है. तो ये सिस्टम है कि बॉटम अप और टॉप डाउन दोनों को एप्लीकेशन में है कि दोनों मिक्स हो, तभी जाकर ये रिजल्ट देगा. तो इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल थ्योरी जो बोला, जैसे कि एटीट्यूड चेंज करना बहुत ज़रूरी है लोगों के वैल्यूज़ में. जैसे लड़कियां क्या है, मतलब कि लड़कियां तो इज्जत से जुड़ी हुई है. बहुत सारे हरियाणा में एग्जांपल देते थे भाई कि उनको बहुत ही प्राइड से जोड़ते हैं, ठीक है. लेकिन ऊंच नीच कुछ भी हुआ तो सोचते हैं कि मेरे लिए ये वो होगा, कलंक साबित होगा, स्टिग्मा है. दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग. सो ये विदाउट इसको बदलने का, स्कूल खोलने का कोई मतलब नहीं है. तो दोनों चीज़ें हो, स्कूल भी हो और ये भी हो. पेरेंट्स के लेवल पे भी बदलाव, उनके एटीट्यूड के लेवल पे भी बदलाव हो, और इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे भी बदलाव. आप चाइल्ड मैरिजेस करके आप क्या देखेंगे? आप बहुत सारे बिहार है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बंगाल, उड़ीसा, आप देखें कि बहुत सारे ऐसे अभी भी एरियाज़ हैं जहाँ पे मैरिज का एज बहुत कम है. तो डेवलपमेंट में आपने देखा, बचाने का एक बहुत बड़ा ये था कि भाई हमने डेवलपमेंट की बात की. हम तो यहाँ पर क्वेश्चन जो कि फोकस कर रहा है कि सेव गर्ल चाइल्ड, बचाने की बात है. तो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है. बचाने का मतलब जस्ट सांस लेना है, उसको खाना देना है, या उसको ग्रो भी कराना है. तो उस कंटेक्स्ट में मैं बताया जा रहा हूँ कि दैट अगर ये लड़कियों को, अगर आप ये देखेंगे कि उनको लड़के से कोई नहीं डरता, अगर कोई लोग बात करते हैं, दे एक्चुअली उनकी रियरिंग से भी नहीं डर, लेकिन शादी बहुत महंगी है.
है ना। अब देखो दूसरा है कि लड़कियों से कोई नहीं डरता, लेकिन ऊंच नीच हो जाए तो बहुत कलंक होगा पूरे फैमिली पे, उनसे डरता है। सो विदाउट चेंजिंग दीज थिंग्स यू कैन नॉट ब्रिंग अबाउट सेव द चाइल्ड। इसलिए झारखंड के कई जगहों पे वो कहते हैं ना फोर्टिसाइड और इन्फेंटिसाइड, मतलब जो भ्रूण हत्या, मतलब गर्भ के अंदर ही ख़त्म कर देते। आप देखो एक रिसर्च बताती है कि दैट सपोज अनवांटेड प्रेगनेंसी है ना, अभी भी अब तो एमिनियोसेंटेसिस और की जगह पर अब तो इको सिस्टम आ गया, मतलब जो कहते हैं ना कि बहुत सारे इकोलॉजी जो रेडियो सिस्टम है जिसके थ्रू आप बता सकते हैं ना कि भाई फीटस मेल है या फीमेल है। तो वो जो टेस्ट है वो तो ऐसे गैर कानूनी है, इट इज़ नॉट वैलिड, बट अभी भी इनडायरेक्टली होता है। अब आते हैं एक बात कि कई जगह पे अगर आप है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी है और वो मेल है या फीमेल है, अब देखो तो मेल और फीमेल है, तो अगर अनवांटेड एक पहले से सपोज कि 2 बच्चे हैं और तीसरा है जो दैट इज़ सपोज इट इज़ डिटेक्टेड इज फीमेल, देन फर्टिसाइड के जो यानी कि उसको जो अबॉर्शन होने का करवाने की टेंडेंसी और जो मेल है तो करवाने की टेंडेंसी किस में ज़्यादा है? आप समझ गए होंगे क्या है, ऐसा क्यों है? इसलिए ना कि बिकॉज दे गर्ल्स चाइल्ड को एक प्राइड से जोड़ा है, हमने उसको जोड़ा है पराया धन, मतलब इससे अर्न किया हुआ चीज़ पे हमारा कोई हक नहीं है। और अभी चेंज किया हमने कि प्रॉपर्टी राइट दिया हमने, बट इनिशियली इट वाज नॉट लाइक दैट। सो सी द माइंडसेट, सी द एटीट्यूड, आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, एटीट्यूड इज़ लाइक दैट। मैं इसको समझा के बता रहा हूँ कि दैट विदाउट चेंजिंग दिस थिंग यू कैन नॉट चेंज। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल थ्योरी, मैंने बताया कि अगर हम सारे थ्योरीज को एक साथ नहीं समझें, मैक्रो सिस्टम और माइक्रो को यानी बॉटम अप टॉप डाउन दोनों को एक साथ नहीं लें, अलग अलग लेवल पे बदलाव एक साथ चीज़ों को नहीं इंटीग्रेटेड तरीके से अगर हम नहीं करें तो हम नहीं कर पाएंगे। ये समझ की बात है, आप समझ रहे होंगे। और रही बात इसका एप्लीकेशन में वही बात बोला मैंने कि ये तो हुआ कि सबको ज़रूरी है करना, नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। फ्रैक्चर्ड अप्रोच होगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। और एप्लीकेशन है कि हम एक तरफ से बॉटम अप की तरफ जाएं और दूसरे से टॉप डाउन की तरफ आए, तो ये गोल अचीव होगा तेजी से। यानी कि एक बॉटम अप एक टॉप डाउन दोनों अप्रोच, माइक्रो वाला लेवल से जो नीचे की तरफ माइक्रो में सो ये सब वाला ये, और ऊपर से जो क्रोनो का था मैक्रो का था ये इधर से आता, दोनों आके मिल गए। तो इसको आपको बताना है। अब आप एटीट्यूड चेंज वैल्यू सब कुछ आ गया ना इसी सिस्टम में। जैसे आपने मैक्रो सिस्टम में बताया, तो मैक्रो सिस्टम इंक्लूड कल्चरल फैक्टर्स है ना, बिलीफ, ट्रेडिशन, वैल्यूज़ है ना, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, प्रोग्राम, और सब उसी में आ गया। और माइक्रो और मेसो में आ गया तो स्कूल है, फैमिली है, पेरेंट्स, ये सब आ गया। तो ये पूरा इंटीग्रेटेड एक अप्रोच है। कहने का अगर सिंपल वर्ड में कहे तो ये कहा जाता है कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम होना चाहिए जो अलग अलग चीज़ों को एक साथ एड्रेस करे और फाइनली जो है एक प्रोसेस वो दिखा रहा है कि किस तरीके से हम रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से अगर आपकी समझ है तो आप आंसर लिख लोगे। समझने में मैंने आपको एक्सप्लेन करने में 5 मिनट लिया, लेकिन इफ़ यू ट्राई टू थिंक ऑफ योर ओन तो इट विल टेक हार्डली फ्यू सेकेंड और मिनट एंड देन यू राइट योर आंसर। तो 15 मार्क्स में है। तो कई लोगों को ना समझ नहीं होते बिकॉज दे हैव नॉट इंटरकनेक्टेड द थिंग्स। तो उनके पढ़ते समय प्रॉब्लम है उनको। ये नहीं है कि वो इसको याद करके कैसे लिखोगे, ये तो एक ऐसे चीज़ है जो एनालिसिस वाली चीज़ है। तो हमारी क्लास में भी यही कोशिश होती है कि दैन इन आवर क्लास दैट वी ट्राई टू इंटरकनेक्ट द एग्जाम्पल्स, है ना। अलग एग्जाम्पल लिया, क्वेश्चंस लिया प्रीवियस का, उसको डिस्कशन करते समय इम्पावरिंग अप्रोच होता है कि दैट यू थिंक ऑफ योर ओन, कि आपको क्या लगता है, वॉट एवर थिंग्स थ्योरी कॉन्सेप्ट यू हैव आउट ऑफ द स्टडी इन पेपर 1 उसको हम कैसे लगा सकते हैं। जैसे ये इकोलॉजिकल थ्योरीज बोलने से ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही है इसको, अब उसको कैसे लगा सकते हैं, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आपने पढ़ा, इसको कैसे लगा सकते हैं, यही है इसमें। तो अगर मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, अगर आपको क्लासेस में इंटरेस्ट है, अभी तक आपने नहीं लिया है, कई लोग कोचिंग नहीं लेते हैं, सोचते आंसर लिख के कर लेंगे, तो ऑप्शन में थोड़ी दिक्कत होगी तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बी श्योर। अगर आपका साइकोलॉजी में बैकग्राउंड नहीं है तब भी आप साइकोलॉजी ले सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा उसमें एक्सपर्ट्स का गाइडेंस लेना चाहिए, ठीक है।
अगर क्या होगा, अगर नहीं लेंगे तो उसमें प्रिपरेशन का टाइम ज़्यादा लगेगा। जो काम आप 1 साल में कर सकते हैं उसको हो सकता है 3 साल में करेंगे। ये बात आप आसपास देख के चेक कर लो किन लोगों ने कितने समय में क्लियर किया है इस साइकोलॉजी से। और आप कहोगे कि स्ट्रेटजी बहुत मायने रखता है। तो अगर आप हमारी क्लास में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारा डिटेल दिया हुआ है, और मैं इन्फॉर्मेशन एक दे रहा हूँ कि 15 नवंबर से लास्ट बैच 2024 के लिए शुरू कर रहे हैं, जो 4 आवर की क्लासेस है, 5 डेज इन अ वीक। तो बिल्कुल जैसे 2 आवर्स की क्लासेस होती है, देन इट टेक्स अराउंड 5 मंथ्स, 4.5 मंथ्स लाइक दैट। सपोज इट इज़ 4 आवर्स क्लास, देन हाउ मच टाइम इट विल टेक? 2.5 मंथ्स, है ना, 3 मंथ्स मैक्सिमम। तो इसमें ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये अगर आप किसी भी एंगल से छूटे हुए हो तो दिस इज़ द लास्ट बैच फॉर 2024। अगर आपने कोचिंग ले लिया है तो जरूरी नहीं कि आप अच्छा परफॉर्म करो, उसके लिए आपको आंसर राइटिंग करना है। तो अगर आपने अच्छी तैयारी कर रखी है तो एक PYQ सीरीज़ है हमारा, 18 नवंबर से शुरू कर रहे हैं। उसको वीकली टेस्ट है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हम उसको इवैल्यूएट करेंगे, उसके मॉडल आंसर देंगे और आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे, ठीक है, ये वो है। और अगर आप एकदम बिगिनर्स हो और आप शुरू कर रहे हो आंसर राइटिंग, है ना, तो आपके लिए एक डेली आंसर राइटिंग सीरीज़ है जिसको हम टेलीग्राम पे चलाते हैं। उसमें आप प्राइम मेंबरशिप ले लोगे तो आपको डेली आंसर उसमें इवैल्यूएट होकर मिल ही जाएगा। वैसे रैंडमली आपका आंसर भी इवैल्यूएट हो जाएगा फ्री में भी। और लेकिन ये दिस इज़ द, तो 3 चीज़ें मैंने बताया, एक क्लासेस के लिए है और एक टेस्ट सीरीज़ के लिए, एंड देन फाइनली डेली आंसर राइटिंग सीरीज़ के लिए। वापस आते हैं इस पे डिस्कशन पे। सो व्हेन यू लुक एट सच अ क्वेश्चन, then sometime it appears very new and how I should write it, because this is require analysis। जैसे हमने कहा importance बताइए, what is the importance of ecological theory and applications जोड़ दिया कि applications का भी बताइए। तो you need to specify these 2 components, what is the importance and how it will ecological theory will help in applications of some program, government program that is meant for saving a girl child, understood? तो इस तरीके से आपको अगर अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली मार्क्स आएगा। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा जैसा क्वेश्चन है उसका प्रिसाइज आंसर दिया जाए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। मिलेंगे अगले किसी मॉडल आंसर के साथ। आप अपने, अगर आपको किसी खास क्वेश्चंस में दिक्कत होती है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उस क्वेश्चन को कोशिश करूँगा कि अगले आने वाले समय में डिस्कस करूँ और आप समझ पाएँ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई क्वेरीज़ वगैरह हो तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर इंटरेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।